Hello everyone, welcome to Mandal classes. Sorry guys, actually I am preparing for my dream examination, so I didn't take your classes regularly. But today onwards, we all together can complete our syllabus as soon as possible, and hope you all are revise your previous lecture and doing practice question. Okay. So in previous video, we have studied about capacitance. Okay, capacitance, and in that video we have studied Q is directly proportional to V. When we increase charge in any conductor, then there increase in potential difference. Okay, and when we remove this proportionality constant, then we have C as a constant, and this C is known as capacitance. Okay, this C is known as capacitance. Okay, and we have also studied about capacitance in a spherical conductor. Okay, and we have done a simple question based on a spherical conductor. Okay, uh, capacitance on a spherical conductor. Spherical conductor, we have studied C is equal to 4 pi epsilon naught R. Okay, and here we have studied that capacitance on spherical conductors only depend upon geometry, which means it depend only on radius of conductor. Okay, and that's why we have studied one question on about earth, and we have take earth radius about 4600 kilometer, and we found capacitance of earth. Okay, so now today we are going to study types of capacitance. How many types of capacitor? Okay, capacitor are of various form. We are types of capacitor. We study only three types. Okay, parallel capacitor, parallel plate capacitor, spherical plate capacitor, and third one is cylindrical capacitor. Okay, cylindrical capacitor. And there are three types of capacitor: parallel plate capacitor, a spherical plate capacitor, and cylindrical plate capacitor. First of all, we have studied charge distribution in previous chapter. Okay, that is electric field. Okay, we have studied charges on parallel plate capacitor, parallel plate, and we have studied cylindrical. We have studied spherical cell, a sphere, and that's charge distribution, uh, aerial charge distribution. Okay, I'm recalling this because here we are using that charge distribution. Okay, so aerial charge distribution we have studied Q is sigma into A. Okay, and we are using this in parallel plate. Okay, because there is a plate capacitor. Okay, plate means this type of capacitor. Okay, we have studied that there this is the symbol of capacitor. Okay, and uh, we are going to learn how to a capacitor react on a parallel plate. Okay,
positive plate, negative plate, and this is known as parallel plate. Okay, and this is cylindrical plate. Okay, and easily a spherical plate. Okay, तो अब हम लोग तीन कैपेसिटर के बारे में जान चुके हैं, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, ठीक है। और तीनों के बारे में हम लोग अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा उसके बारे में पहले देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है क्या, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसमें कैपेसिटेंस कितना होता है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर suppose this is parallel plate capacitor. Okay, suppose this is parallel plate capacitor and this is negative charge and this is negative and this is positive. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसको बोलते हैं, दोनों के बीच में अलग अलग चार्ज है, इसमें अलग अलग पोटेंशियल है, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल के बारे में देखेंगे, इसमें अलग अलग पोटेंशियल है, इसमें एक पोटेंशियल है, ठीक है। तो सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए हम लोग पोटेंशियल मान लेते हैं, इसका प्लेट ए में पोटेंशियल 100 वोल्ट का है, ठीक है। और जब इस प्लेट के सामने हम लोग एक अनचार्ज प्लेट लाएंगे तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कोई भी अगर अनचार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल के पास लाएंगे तो उसका चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में, और तब तक डिस्ट्रीब्यूट होता है जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर जाता, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी अगर कोई अनचार्ज प्लेट को लाएंगे तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए इसका पोटेंशियल जो है, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल सपोज कीजिए इसको V1 मानते हैं, इसको V2 मानते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल है -60 और इसका है 30, ठीक है। तो हम लोग इस टोटल प्लेट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको पैरेलल प्लेट बोलते हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले नेट निकालेंगे, उसके बाद ये दोनों का नेट निकालेंगे, तब पता चलेगा कि इस पैरेलल प्लेट में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल, नेट V ऑन B, ठीक है, नेट V ऑन B, नेट पोटेंशियल ऑन प्लेट B, ओके। तो -60 + 30 दैट इज 30 वोल्ट, ओके। अब नेट पोटेंशियल ऑन A प्लेट, ठीक है, दिस इज 30 वोल्ट, ओवरऑल दिस इज 30 वोल्ट and this is 100 volt, means total net volt 100 - 30 which is 70 volt. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पहले जान चुके हैं कि कोई भी चार्ज के पास अनचार्ज प्लेट लेके आएंगे तो उसका पोटेंशियल घट जाता है, और यहाँ पर हम लोग देख भी रहे हैं कि ये 100 वोल्ट का था, ठीक है, ये 100 वोल्ट का था, और इसमें जब अनचार्ज प्लेट को लाएं जो कुछ पोटेंशियल के साथ है, ठीक है, -60 है, 30 है, तो नेट पोटेंशियल जो है 70 आया, मींस देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑन प्लेट ए, ओके। तो यहां से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि कोई भी चार्ज्ड प्लेट को एक अनचार्ज प्लेट के सामने लाएंगे तो उसका पोटेंशियल घट जाए, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम लोग देखेंगे कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है। हम लोग डिफरेंट शेप्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डिफरेंट शेप में, पोटेंशियल कितना होता है। अब जानते हैं कि हम लोग डिफरेंट शेप में कैपेसिटेंस कितना होता है, जो हम लोग ये फॉर्मूला अभी पढ़े हैं,
Q इज इक्वल टू सी वी, इसमें जो कैपेसिटेंस आया है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। इसमें जो कैपेसिटेंस आया ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पैरेलल प्लेट का देखेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पिछला ईयर 2023-24 में आया हुआ है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, ठीक है। इसको 3 स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो गया, अब हम लोग देखेंगे। मेनली फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये नॉर्मल फॉर्मूला है, किसी भी सरफेस पर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जो हम लोग पहले से ये देख चुके हैं कि चार्ज और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहां से हम लोग कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आया, और कैपेसिटेंस क्या होता है, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं चार्ज क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, हम लोग पढ़ चुके हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज होता है कितना होता है, सिग्मा इंटू ए। और V को हम लोग सिंपली E इंटू डी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। इसका रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज V is equal to minus EDR, and negative sign shows that potential and electric field are in opposite direction, okay। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर V का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसको यहाँ साइड में लिख लें याद करने के लिए, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा, उसको समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये सब का हम लोग डेरिवेशन पहले कर चुके हैं, ये सब हम लोग पता है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज पुट करें, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको याद रखना है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब हम लोग थोड़ा सा और वास्ट इसमें जाएंगे, और हम लोग डायलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो अब इस पैरेलल प्लेट, सपोज कीजिए ये जो पैरेलल प्लेट था, ठीक है, इसी का हम लोग कैपेसिटेंस जो निकाले, सपोज कीजिए इसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए, ठीक है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए, ठीक ना, डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिया जाए, तो इस डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद इस पैरेलल प्लेट पर कितना कैपेसिटेंस बच जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस आफ्टर फिलिंग डाइलेक्ट्रिक्स इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ओके। So we have studied in previous video, we have studied dielectrics about, ठीक है। dielectrics we represent dielectrics by K, okay। तो ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट A by D। now we conclude this from this way, ठीक है। इस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय इंटू के, ठीक है। डायलेक्ट्रिक्स 1 बाय के होता है, ठीक है। डायलेक्ट्रिक्स 1 बाय के, ठीक है। डायलेक्ट्रिक, तो यहां पर क्या होगा, के डायरेक्ट, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये कट गया, ठीक है। यहां पर K आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय के लिए, ठीक है। ये जो 1 बाय के यहां पर है, ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं के, तो एप्सिलॉन नॉट A K बाय डी, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक्स का क्या इंपैक्ट है
कि जितना डायलेक्ट्रिक्स को हम लोग डालेंगे उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। सिंपली अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो उसमें पता रहेगा कि डायलेक्ट्रिक्स का वैल्यू 6 है, तो हम लोग सिंपली इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो डायलेक्ट्रिक्स जब हम लोग फिल करते हैं कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K बाय D, वेयर K इज डायलेक्ट्रिक्स। ओके, तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, 3 टाइप का कैपेसिटर हम लोग पढ़े। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन करना है अभी। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ओके, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल सिंपली सिलेंडर का शेप का होता है। ठीक है, और इसमें इन्वॉल्व सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, in cylindrical capacitor there is involvement of only curved surface area. Okay, so when we use formulas then we only consider this curved surface area, not this. Okay, only curved surface area. Okay, so formula C is equal to Q by V, most important formula C is equal to Q by V, जो हम लोग सबसे पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, दोनों के रिलेशन से। ठीक है, C is equal to Q by V, then we can put the value of V. We have studied E into dr. Okay, dr d एक ही है, means dr means distance. Okay, and now integrating this by integrating equation 1। ठीक है, C इज इक्वल टू Q, और इंटीग्रेट किसको करना है, इसको। ठीक है, हम लोग पढ़े माइनस ई डी आर, ई इंटू डी आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलेंडर का केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जितना कर्व सरफेस एरिया इसका है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q बाय, सॉरी, इंटीग्रेटिंग E क्या हो जाएगा, Q बाय 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसको हम लोग अच्छे से यहां लिखते हैं। ठीक है, C इज इक्वल टू Q एंड वी पुट दिस द वैल्यू E कर्व सरफेस एरिया, curved surface area of cylinder 2 pi RL if the height of cylinder is L. ठीक है, if we consider the height of cylinder L then the formula of curved surface area is 2 pi RL. Okay, then integrating this Q by 2 pi RL epsilon naught, okay, into dr. This is द फॉर्मूला। अब हम लोग को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो सिंपली इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा, Q कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, और जो इंटीग्रेशन होगा dr के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q बाय 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, into 1 by R into dr। ओके, एंड कैंसल Q। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट A टू B ले सकते हैं। ठीक है, कहीं से कहीं एक दो पॉइंट का फिक्स पॉइंट पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऊपर चला गया, 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट, Q कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, A और B। ठीक है, A और B के रिस्पेक्ट में हम लोग करना है। तो हम लोग एक डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पढ़ना है कि अगर A से B कोई भी डिफरेंशिएशन हो, सपोज कीजिए dx
एक्स इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन ए टू बी है, ठीक है, माइनस, तो इसको हम इजीली लिख, इसका जो पावर है, ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव लिखेंगे तो b बाई ए हो जाएगा, x dx हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ना है, ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन था, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्यों आया, हम लोग पढ़ चुके हैं, b इज इक्वल टू माइनस ई डी आर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से b है तो b से a हो जाएगा, और 1 बाई आर का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग आर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लॉग आर, यहाँ क्या हो जाएगा, b बाई ए, ओके, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx is log x, okay, and simply we use this, and 1 by r dr is log r b to a, and we can write this 2 pi l epsilon naught by log b by a, log का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जब log b माइनस लॉग ए हो तो इसको सिंपली हम लोग log b बाय log a लिख सकते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में रहता तो प्लस हो जाता है, उसको प्लस में रहे तो उसको मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं, नेगेटिव में रहे तो डिवाइड में कर सकते हैं, और डिवाइड में रहे तो नेगेटिव में, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, क्योंकि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, ओके, ठीक है, सिंगल स्टार, ओके, आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बाई ए, ओके, बी बाई ए क्या है, यहाँ पर ए बी क्या है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और एल क्या है, सिलेंडर का हाइट, ठीक है, सिलेंडर का हाइट जो है, इस हाइट को हम लोग एल माने, ठीक है, okay, so this is the formula, you can write this. Now move ahead, now we have to study spherical, okay, spherical capacitor, okay, spherical capacitor, spherical capacitor, okay, and we can draw a sphere, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, तो स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर में क्या होता है, तो फिर से हम लोग देखेंगे, स्फेरिकल सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी, और फिर से V का फॉर्मूला इसके टर्म में लेंगे, वहां पर हम लोग सिलेंडर के टर्म में लिए थे, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू बाई माइनस ई डी आर हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पर हम लोग फिर बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर सकते हैं, ठीक है, C इज इक्वल टू क्यू, अब यहां पर क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्फेरिकल कंडक्टर, ओके, स्फीयर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 4 पाई Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ओके, एंड just we put this value and now integrating this, okay, C is equal to constant टर्म को बाहर करना है, Q by 4 pi epsilon naught and integrating 1 by r square into dr, Q cancel, okay, and now C is equal to 4 pi epsilon naught, okay, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ले सकते हैं, ठीक है, ए बी, यू कैन टेक एनीथिंग, ओके, ए टू बी, ओके,
1 by r square, we can write this r to the power minus 2 into dr. Okay, and integrating this, we find 4 pi epsilon naught, क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1, ठीक है, और नीचे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 by r बचा, ठीक है, क्या बचा, 1 by r। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, r टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है r टू द पावर n + 1 by n + 1, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है, तो वहीं पर +1 कर दिया, ठीक है, तो -1 बचा और नीचे -1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 by r। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देना, ठीक है, a to b, एंड सिंपली क्या हो जाएगा, a by b हो जाएगा, ठीक है, 1 by a minus 1 by b हो जाएगा, लिमिट को पुट करना है, c 1 by 4 pi, तो क्या होगा, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 pi epsilon naught a b by b minus a, simply by taking LCM, and LCM क्या हो जाएगा, ab and just numerator become denominator, and ओके, तो क्या हुआ, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, 1 by a minus 1 by b by putting this limit, okay, by putting this limit in r, 1 by a minus 1 by b, and taking this LCM and ab, and this is ab and b minus a, okay, this is simple, okay, this is capacitance on a spherical capacitor. This is different from a spherical conductor. We have studied before a capacitance in a spherical conductor, and this is different a spherical capacitor, okay, कैपेसिटेंस दोनों में अलग अलग होता है, स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों अलग अलग कैपेसिटेंस, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना। स्फेरिकल कंडक्टर के केस में क्या होता है, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में होता है C = 4 pi epsilon naught r, ओके, और स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में होता है C = 4 pi epsilon naught ab by b - 1, ओके। इसके बाद हम लोग का पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पढ़ना है, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी पढ़ना है, उसके बाद कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब दो चार्ज कैपेसिटर को जब एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो दोनों में एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है हालांकि, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मार्कर नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, कैपेसिटर का टाइप पढ़े, 3 कैपेसिटर होता है, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों का डेरिवेशन देखिए, तीनों का फॉर्मूला देखिए, ठीक है। इसको सिंपली शॉर्ट वे में लिखना है तो लिख सकते हैं, सी पैरेलल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ओके। सी स्फेरिकल क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय बी माइनस ए, ठीक है। सी सिलेंड्रिकल क्या होता है, 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट बाय लॉग बी बाय ए, ओके। दिस इज द formula of capacitance on parallel plate, spherical plate and cylindrical plate, okay। अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद एनर्जी लॉस पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर का द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टेक केयर and revise your back portion that you have studied earlier,
because in 12th class we have vast syllabus. Okay, so revision is most important. You have to make short notes, question practice, and we have to see your previous year questions. Okay, previous year question is most important. Okay, see you, bye bye.